Good morning, everyone. So, yesterday we have started your semiconductor chapter. So, last topic हमने देखा था फिल्टर्स, कैपेसिटर फिल्टर. सबको समझ में आया है ना? कैपेसिटर फिल्टर्स. Yes. No need to explain it again. Yes. अरे आवाज आ रही है ना मेरी? So then today we will start with next topic. Now see, in this topic there are three components, you can say. Zener diode is deleted from your syllabus. Then after that there is a photodiode and then solar cell. So first today we will see photodiodes. Now photo means what? Photo means light. Okay. So photodiode means उसमें अभी photo होता है आपका light. Then what does this diode do? This is a special type of PN junction diode. ये क्या करेगा? Which converts light energy into electrical energy. ठीक है? Photo diode. Photo means light. So क्या करता है ये? It convert light into electrical energy. Okay. Then the other names of that photodiode are photodetector or photosensor. Photodetector means light detector, or photosensor means it is very sensitive to light. Okay. Then these are some symbols and diagram. See, एक्चुअल में कैसे दिखते हैं? ये इस तरह से दिखते हैं आपको फोटोडायोड्स. ओके, इट हैज टू टर्मिनल्स और ये इस तरह से अवेलेबल है मार्केट्स में. देन सिंबल ऑफ द फोटोडायोड इज दिस वन, a diode, and this base of the triangle is called anode, and this point will be called as the cathode. Anode means positive charge, here cathode means negative charge. Okay, so diode में ये होगा आपका, this base will be a positive charge and this will be your negative charge cathode. Okay, remember this. Anode means positive, cathode means negative. Then ये arrows निकालना जरूरी है. If you don't draw this arrow, okay, if you don't draw this arrow, then it will be just a simple diode. Okay, arrow represent that light is falling on this diode and this diode is sensitive to light. Okay, arrow represent light is falling on this diode and this diode is sensitive to light, so it is called as a photodiode. So if you don't draw the arrows, then वो simple आपका diode ही दिखेगा आपको. So this while drawing the symbol of photodiode, along with this arrow it is necessary. If you don't draw the arrow, diode simple diode लगेगा, इसलिए arrows निकालना जरूरी होता है. So this represents the photodiode. Okay, then this is the basic part. Now we will see its working. अभी स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पार्ट देखना है. पी रीजन होता है, एन रीजन होता है. इट इज अ डायोड मीन्स देयर विल बी अ जंक्शन ऑफ पी एन रीजन. ओके, पी एन जंक्शन होगा वहां पे. देन उसको बाहर से अभी क्या कहे देखो, द रीजन वेर योर डायोड इज प्रेजेंट, वहां पे दैट रीजन इज transparent for the light medium. Okay, means that medium is transparent for the light. means ये जो आपका डायोड है उसमें आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिखा है, देखो जहाँ पे आपका पीएन जंक्शन होगा उसके यहाँ पे ऊपर से उसको ग्लास से कवर किया जाता है. ठीक है, मतलब कांच के अंदर आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है. तो वाई इज दिस सो? सो दैट लाइट जो भी इंसिडेंट होगी इट विल बी डायरेक्टली फॉल ऑन दैट पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, इसीलिए पीएन जंक्शन को एक कांच के नीचे रखा जाता है एंड द अदर साइड ऑफ दैट डायोड इज कोटेड विथ सम ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल मतलब क्या? विच विल बी अनेबल टू ट्रांसफर द लाइट इनसाइड दिस रीजन. ठीक है, इसीलिए डायोड इज केप्ट अंडर द ग्लास मटेरियल और उसके बाजू वाले पार्ट को ओपेक मटेरियल से कोट किया जाता है. मीन्स
so that light cannot pass inside this region. It should only fall on the PN junction diode. Okay, so यहाँ पे देखो diffuse mask of SiO2 or you can say silicon nitride coating. So silicon nitride coating का और you can say SiO2 वही है वो. So sorry अलग होगा. So this coating is done over here so that light will only fall directly on your PN junction. Okay, so this is the structure of your photodiode. Okay, इतना समझ गया सबको? Photodiode means समझ गया? Shall I start now working part? Yes. Yes, ma'am. Now for working part I will show you some another diagrams. Wait a minute. Wait a minute, I'll share that. So for working of this photodiode, I have shown you some with the help of diagram. We will see the explanation. Now see, first diagram represents this is your P-type semiconductor, N-type semiconductor. They are meeting here at a certain region. ठीक है, इस पॉइंट पे वो लोग मीट हो गए. सो दिस फॉर्म्स एन PN जंक्शन डायोड हो गया. ठीक है, फिर उसको क्या किया हमने, वी आर प्रोवाइडिंग हियर एक्सटर्नल सोर्स पावर सप्लाई. Now positive is connected to P type, means positive is connected to negative terminal of external source is connected to P type and positive terminal of external source is connected to N type. Means what? Positive negative is connected to positive and positive is connected to negative. Means ये कौन सा biasing हो गया है फिर? When positive is connected to reverse biasing हो गया. Okay, means what? Your photodiode works in reverse bias. ठीक है, photodiode आपका reverse bias में work करता है. Now see then what will happen actually. अभी क्या होता है, कैसे होता है, अपने को देखना है. Now basic thing everyone knows कि जब हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज वहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन विल फॉर्म. ठीक है, ये सारा 11th में ही हो गया. सो सेकेंड डायग्राम रिप्रेजेंट्स हियर डिप्लीशन रीजन. ये कैसे फॉर्म होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, इट विल क्रॉस दिस जंक्शन एंड इट विल कंबाइन विद द होल. यहाँ पे जो होल है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा. देन अगेन व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है सारे इलेक्ट्रॉन्स will cross the junction and they will combine with the hole over here. ठीक है, फिर when electron leave this region, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है 3, वो जब ये रीजन छोड़ जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, जो कि मैंने इधर वाले डायग्राम में दिखा. ठीक है, सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव दिस प्लेस एंड व्हेन दे विल गो इन P टाइप, हियर ऑल पॉजिटिव आयंस विल बी क्रिएटेड. देन उसके बाद when this whole electron combines with the hole, here all negative electrons will negative ions will be created. मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कंबाइंड विद द होल और वो डिप्लीट हो जाएगा. मतलब आपने लास्ट ईयर पढ़ा है डिप्लीशन रीजन, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स का रिडक्शन होता है नंबर में. क्यों होता है, बिकॉज ये इसके साथ आके कंबाइन होके न्यूट्रलाइज कर जाता है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, मतलब ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे जब ये दोनों कंबाइन हो गए. तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बस आपका नेगेटिव आयंस आपको मिलेंगे. अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो किसी एटम में है, उसके बीच में पॉजिटिव आयंस है, दैट इज योर न्यूक्लियस. तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल गो हियर, तो यहाँ का पॉजिटिव वैसे ही बच गया ना, तो इसीलिए वहां पे पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया. और जब ये इलेक्ट्रॉन आके, यहाँ पर भी होल है मतलब वहां पर भी एटम्स है, तो ये होल मतलब कौन, पॉजिटिव, तो इधर का इलेक्ट्रॉन वैसे ही रह जाएगा ऑर्बिट में का. जब ये इलेक्ट्रॉन आके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एटम में का इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन बनेगा आपका ऑन दिस साइड.
ऑल पॉजिटिव आयंस विल बी क्रिएटेड, ऑन दिस साइड ऑल नेगेटिव. फिर क्या होगा, दिस डिप्लीशन रीजन गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, इंक्रीज होगा तभी तो वो रिवर्स बायस में जाएगा. अभी क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स में देखो, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये क्या करेगा, इट विल ड्रॉ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास भागेंगे और यहाँ के सारे होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है, दे विल मूव टूवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अट्रैक्ट करेगा. तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे, सारे होल्स यहाँ भाग रहे. तो ये जो रीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस रीजन देर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स एंड नो होल. मीन्स यहाँ पे आपका डिप्लीशन रीजन ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा. ठीक है, तो एक केस आएगी जब वो डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो केस चलता रहता है, means this process goes on when electron goes here combine with the hole and so process. So at that time a small amount of current flow होता है सर्किट से. ठीक है, small amount of current flow होगा because ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं. So when electron moves, current का flow चालू हो जाएगा positive to negative. So small amount of current flow होगा and that is called as a reverse current. और उसको फोटोडायोड के लिए हमने नाम दिया है फोटो डार्क करंट. ठीक है, तो फोटोडायोड में उसको बोलना है डार्क करंट बोलना है. सो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट which flows here, it is called as a dark current. ये कब होगा, when your this all process goes on. okay, then next अभी क्या होगा देखो, ये सारा आपका बेसिक डायोड में पीएन जंक्शन डायोड में होगा. नाउ when light is incident on this pn junction diode, then क्या होगा देखो, लाइट इंसिडेंट होती है मतलब फोटॉन्स आर इंसिडेंट. ठीक है, लाइट का दूसरा वेव नेचर क्या है, फोटॉन. सो फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू. एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटॉन. सो फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू. अभी देखो क्या होता है, व्हेन one photon is incident, or you can say when light is incident on this region near the pn junction, तो अभी यहाँ पे पीएन जंक्शन जो है वो किसी चीज से बना है ना, इट इज व्हाट, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना है. मतलब पी जंक्शन कैसे बनता है, जब आप किसी उसको डोपिंग करते बनता है, तो वही अपना सेमीकंडक्टर डिवाइस है. तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें भी एटम्स हो गए. ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल दिखाया है, बीच में उसका न्यूक्लियस है, उसके वैलेंस शेल में. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यू नो एवरीवन, लास्ट शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो वैसे ही है. नाउ व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, अभी क्या होगा, दिस एटम will, or you can say atom make a one electron will absorb all the energy from this photon. ठीक है, एक फोटॉन चला गया एक एटम के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ने पूरा उसका फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है. वो कितना है, एच न्यू. फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब ऑल दिस एनर्जी एच न्यू, वो और एनर्जेटिक हो जाएगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल लीव दिस एटम. ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के कंडक्शन करने के लिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. ठीक है, मतलब करंट कैसे फ्लो होता है, व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ से, तो वो कंडक्शन के लिए आगे यूजफुल है. तो ये मैंने आपको बताया ओनली फॉर वन एटम. ठीक है, व्हेन वन एटम विल एब्जॉर्ब वन फोटोन. नाउ ऑन दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल there are number of atoms, so every atom will absorb one photon and the electron उसमें का absorb करेगा energy, and ऐसे number of electron will be free from that atom. So that electrons will go to again your positive terminal, और यहाँ से उसके जो होल्स बन जाएंगे. जो अभी ये एटम यहाँ से निकल गया एक, तो वहाँ पे क्या बना, होल. तो वो सारे होल्स यहाँ पे नेगेटिव में आएंगे एंड फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट, मीन्स करंट फ्लो विल स्टार्ट. ओके, तो इस तरह से करंट इस फोटोडायोड में फ्लो होना स्टार्ट होगा और फिर आपका फोटोडायोड वर्क करना स्टार्ट होगा. तो इसीलिए व्हेन लाइट इज इंसिडेंट देन ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा. और जब तक लाइट इंसिडेंट नहीं होती है, सो टिल दैट टाइम यू विल गेट अ स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू दैट रिवर्स बाइसिंग. ठीक है, जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है. एंड व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे
and then you will get large number of electron for the conduction and large amount of current will flow through that photodiode. Got it? समझा सबको? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. we Yes, will ma'am. see now. सो अभी सो दिस एवरीथिंग, ये जो डायग्राम है ऊपर वाला वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. सो अभी देखो आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं. द रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड नॉट द अप्लाइड वोल्टेज. रिवर्स करंट मतलब कौन? आपका डार्क करंट. देखो यहाँ पे लिखा है दिस करंट इज कॉल्ड द डार्क करंट इन अ फोटोडायोड बिकॉज इट फ्लोज व्हेन द फोटोडायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड. मतलब जब आपका फोटोडायोड पे लाइट नहीं पड़ेगा, मीन्स नॉट इल्यूमिनेटेड एट दैट टाइम दिस डार्क करंट विल फ्लो. जो कि मैंने आपको बताया रिवर्स बायसिंग की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और उसको हमने बोला है डार्क करंट. देन when p-n junction is eliminated electron holes pairs are created which I already told you. जब लाइट इस पे पड़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. देन आफ्टर दैट सी द इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सारे एनोड की तरफ जाएंगे, होल सारे कैथोड की तरफ जाएंगे एंड देन कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट. तो अभी रिवर्स करंट जो है मतलब जो कंडक्शन के बाद का, इट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखो इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट. जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा लाइट का उतने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा वो एनर्जी एटम्स क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. और जितना एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो गए. मीन्स देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ करंट, मोर अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट. ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला है रिवर्स करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इफ द इंटेंसिटी of light is more, then there will be large number of photons and उनका absorption फिर ज़्यादा होगा and so your reverse current will increase, magnitude उसका increase होगा. So reverse current depends upon intensity of light. ये point समझ गया? Reverse current depends on intensity of light. Yes, ma'am. फिर अभी उसके बाद तो टोटल करंट पासिंग थ्रू द फोटोडायोड क्या हो गया है? इट इज द सम ऑफ फोटो करंट. फोटो करंट मतलब यही आपका रिवर्स करंट एंड द डार्क करंट. डार्क करंट कब है? व्हेन देयर इज अ रिवर्स बायसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट Yes. प्लस फोटो करंट. फोटो करंट मतलब यही है रिवर्स करंट. जब फोटॉन्स उस पर गिरेंगे और जब वो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड फोटो करंट. सो जो टोटल करंट विच इज फ्लोइंग through this diode, that is the addition of photo current plus dark current. Then reverse current initially increase with the intensity as I already told you. It reaches a constant value and that constant value is called as the saturation current of the photodiode. Saturation होना मतलब क्या? Saturate होना मतलब क्या? एक जगह पे accumulate हो जाना, रुक जाना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आपका करंट कांस्टेंट होने वाला है, तो उस करंट को हमने नाम दिया है सैचुरेशन करंट. अभी फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डायोड. सो देखो अभी क्या हो रहा है. This is your forward bias voltage. This will be a reverse bias voltage. This you have already seen last year PN junction में भी पढ़ा है हमने. And this represent the reverse current. Okay. Now ये तो आपका forward biasing है. As your forward bias voltage is decreasing, your current is slowly increasing. ठीक है, current is slowly increasing. Then after that when you start increasing reverse bias voltage, ठीक है, देखो -1 -2 -3 मतलब हम वोल्टेज बढ़ा डिक्रीज करते जा रहे हैं क्योंकि -1 सब में बड़ा है, -2 छोटा है, -3 उससे भी छोटा है ऐसे. So when you go on decreasing then that reverse bias voltage at some point after ये जो increase होगा after that you will get a constant value of the current. ठीक है, देखो इस कर्व के लिए 100 हो गया, देन 200,
300, 400, so on. So their value of that current become constant, and this is called as your saturation current. Means आप आपका voltage कम भी कर रहे हो या बढ़ा भी रहे हो, still your current value is same. देखो -1 के लिए 100, -2 के लिए 100, -3 के लिए 100, -4 के लिए 100. So when you are decreasing your reverse current, your voltage, your reverse current is constant. Means your photodiode is in saturation condition. अभी उसके बाद उसका कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. So this is the IV characteristics of a photodiode. ठीक है. अभी उसके बाद दूसरा है relation between reverse current of a photodiode and intensity of illumination. So now यहाँ पे कौन है आपका, on y axis is your current, on x axis is your light intensity. Now see, ये जो small part दिख रहा है आपको, id is what dark current. So I already told you when approximately actually ये zero ही है. देखो zero जब light intensity zero है और थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, at that time only your dark current will flow. Okay, either actually यहाँ पे intensity approximately zero consider किया है. So when there is no intensity of light, then also your reverse current flows, and that reverse current is called as a dark current. So this is shown by this small part of the curve. ठीक है, ये छोटे से पार्ट से दिखा है. Then after that देखो क्या हो रहा है. As your intensity of light is increasing, your value of current is also increasing, because आपका कर्व कैसा हो रहा है, इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, आपका ये जो कर्व है देखो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है. मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस. अगेन ईयर देखो इंटेंसिटी बढ़ गया है, वैल्यू ऑफ करंट हैज इंक्रीज. अगेन इंटेंसिटी इज ग्रेटर, करंट इज ऑल्सो ग्रेटर. मीन्स द रिलेशन बिटवीन द करंट and the light intensity is linearly increasing curve हो गया. ठीक है, और you can say a straight line हो गया, approximately straight line. Okay, then after that you will get some point when even though your intensity of light is increasing, you will get a constant value of the current, and that current is called as a IS, saturation current. ठीक है, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड में लास्ट ईयर देखा था, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ फिर भी करंट नहीं बढ़ता, क्योंकि उस डायोड का कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन है. अगर उस कंडीशन से वो ज्यादा कुछ हो गया तो डायोड क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा. इसीलिए इवन दो यू स्टार्ट इंक्रीजिंग वोल्टेज, आपका करंट कांस्टेंट ही रहेगा. सो सेम इज ओवर हियर. So even your light intensity is increasing, this current becomes constant. So that is called as saturation current. और उस समय आपका वोल्टेज जो है वो होगा वी आर. उस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज. ठीक है, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, वहाँ पे क्या हो रहा था, अ सर्टेन वोल्टेज आफ्टर विच योर करंट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली. तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी इज increasing but your current is constant, and that voltage will be called as an, जिस पॉइंट पे ये सारा होगा उस पॉइंट पे उस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज. ओके, एट सर्टेन वैल्यू पे ही ये सारी चीजें होगी, क्योंकि उसके पहले आपने देखा ही है जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है. सो दिस आर दी IV characteristics and relation and working of the photodiode. Any doubt in these two graphs? No. Then उसके बाद now you have to define one term, that is dark resistance. डार्क करंट है तो वहां पे डार्क रेजिस्टेंस भी होगा ऑफ कोर्स. सो डार्क रेजिस्टेंस ऑफ दैट फोटोडायोड इट इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज टू द डार्क करंट. ये सिंपल आपका ओम्स लॉ लिया है. V is equals to I into R. So R will be what, V upon I. So here dark current will be defined as maximum reverse voltage upon dark current. So that will be your value of dark resistance. Okay, so ये just एक formula आपको याद रखना है. Then we will see advantages of
photodiode and disadvantages. So now advantages क्या है? Quick response when exposed to light, linear response जैसे हमने ग्राफ में देखा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, so the graph is approximately linear. So linear response है means reverse current is proportional to इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये ग्राफ तो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड से एक्सप्लेन किया है. लीनियर करंट सॉरी लीनियर ग्राफ मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इंटेंसिटी और करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टेप्स में करंट भी बढ़ेगा. ठीक है. सो लीनियर रिस्पॉन्स मीन्स योर रिवर्स करंट इज proportional to the intensity of light. Then third advantage, these are high speed for operation, फास्ट ऑपरेट होते हैं. देन लाइट वेट होता है मतलब वेट कम होता है, साइज छोटा है इसलिए कहीं पे स्टोर करने के लिए भी इजी पड़ जाएगा. देन वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मीन्स photodiodes are made from Si respond to radiation for this wavelength. SI कौन है? सिलिकॉन है. सिलिकॉन मटेरियल का उसको बनाया है सो दैट वो इस वाले वेवलेंथ के रेंज को रिस्पॉन्स करेगा. यूवी लाइट एंड IR लाइट. एंड लो कॉस्ट होता है, सस्ता होता है. तो ये सारे एडवांटेजेस. फिर डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है. सिमिलर टू मेनी अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस. अभी आपको पता है सेमीकंडक्टर का हमने देखा है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, लास्ट ईयर वी हैव सीन दिस कंसेप्ट. सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस होगा. तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है. बिकॉज फोटोडायोड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस विल बी वन disadvantage. Then low reverse current for low illumination levels means I already told you reverse current किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे. अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तो आपका करंट रिवर्स करंट का वैल्यू कितना होगा? लो. सो इफ देर इज अ लो रिवर्स करंट व्हेन देर विल बी लो इल्यूमिनेशन लेवल. मतलब अगर लाइट कम गिरेगा डायोड पे तो आपका करंट भी स्लो वैल्यू का बनेगा. ठीक है. फिर एप्लीकेशन है उसके, दिस इज यूज इन काउंटर्स एंड स्विचेस. मीन्स फोटो डायोड को आप एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, नहीं तो काउंटर मतलब काउंटिंग मशीन्स जो होते हैं, नहीं तो बर्गलर अलार्म सिस्टम. जैसे वो बड़े बड़े सेफ्स होते हैं वहाँ पे अलार्म सिस्टम होता है. जैसे उस पर लाइट इंसिडेंट होगी, करंट फ्लो होगा और वो इंडिकेशन करेगा दैट समथिंग इज रॉन्ग. सो इसीलिए वो अलार्म सिस्टम्स में भी फोटो डायोड का यूज होता है. देन डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन, ये दोनों करता है वो. देन सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाईएस्ट स्पीड ऑपरेशन के लिए उसका यूजफुल होगा. देन इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, देन इन ऑप्टोकपलर. ऑप्टोकपलर भी फोटो डायोड के जैसे ही होता है, उस पे भी लाइट अगर मतलब वो दो सर्किट को कनेक्ट करता है. ठीक है. अगर यहाँ पे एक सर्किट है और यहाँ पे एक सर्किट है तो उसके बीच में होगा आपका ऑप्टोकपलर और ये दोनों सर्किट को कनेक्ट करेगा जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी. ठीक है. अगर आप इस ऑप्टोकपलर पे हाथ रख दोगे ना तो ये दो सर्किट के बीच का कनेक्शन चला जाएगा. ओके. क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है अभी, क्योंकि आपका इफ यू प्लेस योर हैंड तो वहाँ पे लाइट इज अनेबल टू पास इन दैट ऑप्टोकपलर. सो देयर विल बी डिसकनेक्शन ऑफ दिस टू सर्किट. सो इसीलिए फोटोडायोड इज यूज इन दिस ऑप्टोकपलर्स ऑल्सो. देन ऑप्टो मीन्स लाइट, कपलर मीन्स दो सर्किट को कनेक्ट करने वाला है. देन फोटो सेंसर्स और डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटीज. मतलब फोटो डायोड को आप एज अ सेंसर भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है. देन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर. फायर स्मोक डिटेक्टर के लिए भी आप वहाँ पे एज अ सेंसर उसको यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो डायोड. सो अभी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस में किसी को डाउट है? Yes. Yes.
आवाज आ रही है ना मेरी? ये है क्या बोल रहे हो? डाउट है क्या? बोलो। मेरी एक्टिंग करते हो क्या? देन नेक्स्ट है आपका सोलार सेल। सोलार सेल को ही हम फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, बिकॉज solar energy is converted into your electrical energy. Photo means again light. So sunlight से जो अपने को light मिलती है, that is called as the solar energy. So that light energy is converted into electrical energy. So it is called as a photovoltaic cell. ठीक है? अभी light incident on solar cell produces both current and voltage to generate electric power. अभी इसका जो वर्किंग है ना, ये सिमिलर है, फोटो डायोड के ही सिमिलर है, बट उसमें हमने उसको रिवर्स में चला था। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड में चलाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पी और एन टाइप यूज़ करना है और उसी से आपको इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल है। सो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखेंगे, वर्किंग कल देखेंगे, बिकॉज 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। सो देखो क्या होता है। दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड उसके ऊपर होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर को एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट किया जाता है। ठीक है, एक मटेरियल से उसको कोट किया जाएगा, सो दैट एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का यूज क्या है, इट विल क्या बोलते हैं उसको, जब लाइट इंसिडेंट होगी सनलाइट, इट विल पास ऑल विजिबल लाइट इनसाइड टू द एन साइड, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो भी क्या बोलते हैं उसको, हीट रेडिएशन जो आएगा, हीट रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए उसको एंटी रिफ्लेक्टिंग बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे विजिबल लाइट इनसाइड पास होगी और हीट रेडिएशन को वो ब्लॉक करेगा। सो एन टाइप इज कोटेड विद द एंटी रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस। देन पी टाइप जो है उस पे भी एक कोटिंग होगा विच इज कॉल्ड एज रियर कॉन्टैक्ट। ओके, सो एन टाइप को और पी टाइप में देखो क्या डिफरेंस। पी टाइप इज थिकर देन योर एन टाइप। देखो अभी पी टाइप इतना बड़ा है, एन टाइप तो इतना एक जस्ट लाइन के जैसा है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज जो सनलाइट गिरेगी, ठीक है, तो उस लाइट में के जो फोटॉन्स है वो इस एन टाइप तक पहुंचने के लिए, एन एन टाइप मटेरियल तक पहुंचने के लिए उस एन टाइप को छोटा सा थिन लेना है। अगर वो मटेरियल इतना बड़ा होगा तो सनलाइट को आते आते ही टाइम हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर वर्किंग ऑफ दैट। इसीलिए एन टाइप को थिन रखना है एज कंपेयर टू पी टाइप। देन अभी ये सारा तो यहाँ पे जो है उसको बोलना है फ्रंट कॉन्टैक्ट, इसको बोलना है बैक कॉन्टैक्ट और यू कैन से रेयर कॉन्टैक्ट। मतलब आपका जो सोलर पैनल्स अगर आपने कहीं देखे होंगे, तो सोलर पैनल जो दिखते हैं आपको ऐसे ब्लैक कलर होते हैं और उस पर लाइन्स लाइन्स रहते हैं, तो उसके पीछे एग्जैक्टली आपका एन टाइप मटेरियल होता है और एन टाइप के एग्जैक्टली पीछे आपका पी टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर अबाउट या। और फिर जो यहाँ पे जनरेशन होगा पावर का, उसको कनेक्शन मतलब उसमें अभी ये कल मैं बताऊंगी आपको वर्किंग में, ये नेगेटिव कैसे बनता है, ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, और उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगाना है टू मेजर द पावर क्रिएटेड बाय दैट सोलर सेल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर अबाउट योर सोलर सेल or it is also called as photovoltaic cell. Photo means light again, which will convert it into the electrical energy. ठीक है, स्ट्रक्चर में डाउट है क्या? टुमारो वी विल सी द वर्किंग। ओके मैम। कल मैं स्ट्रक्चर पूछने वाली हूँ, तो जो भी बोला है मैंने याद रखो, या तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो। कल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, कोई आप में से कोई एक करने वाला है स्ट्रक्चर फिर से एक्सप्लेन। ओके, अमित, अमित आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? और हाँ, और एक मुझे बोलना था,
रिवीजन जो है लेना है, मतलब अभी सुपरपोजिशन तो अब भी खत्म हो गया अपना चैप्टर। एंड सेकंड जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें जो डाउट होगा ना, वो सारे क्वेश्चन मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे, पर्सनल नंबर पे। सो रिवीजन लेक्चर में सिर्फ उसी का रिवीजन होगा। ओके। सो जो भी आपके डाउट्स है वो सब लिख के रखो और मुझे सेंड करो। और फिर वो रिवीजन लेक्चर देखते हैं थर्सडे को, कब लेना है देखेंगे। ओके। आज ऐसे लग रहा है मैं अकेली ही बात करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही नहीं मैम हमें। हूँ, है ना? हाँ, तो रिस्पॉन्स भी दो। मुझे लगता है सिर्फ अजीत ही है, बाकी के लोग नहीं है। नहीं मैम है ना। तो रिस्पॉन्स देते टाइम क्या हो जाता है, या अनम्यूट करके बोलने का भी आपको बोर हो जाता है? कौन अनम्यूट करे, कौन टीचर को रिस्पॉन्स दे? टीचर वैसे बक बक कर रही है, बक बक करने दो। उसमें से कोई लोग सुनता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अच्छा बात है। तो जो लोग है वो ठीक है, फिर कल वर्किंग देखते हैं उसका। ओके। ओ मैम।